work, energy and power. We were doing the 4th unit of physics, that is work, energy and power. You know, yesterday we have conducted one lecture. We have just started and I have gave you a small introduction about the unit, and in that we have studied about the term work. Even a work is said to be done on an object. So work is said to be done on an object when force is applied, and by the application of that force, if there is displacement in the object, and both force and displacement should be in the same direction. दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. Then only we can say that work is done on an object. This we have studied in the last class. And in the last we were discussing the thing. Suppose I have given you the example of roller. This was the roller. Suppose this is a roller, and we are applying the force on the handle of this roller in this direction, like this, and this roller will move on the surface of earth like this, so its displacement is in this direction. So this is the direction of displacement. And if I mark the displacement in this direction, then you can see here, you know, force and displacement both are vector quantities. So you can see here, between the direction of force and between the direction of displacement, there is some angle. And according to our definition of work, we know that force and displacement should be in the same direction. But here the direction of force and displacement is not same, but there is some angle between the direction of force and displacement, and the angle is theta. I hope I'm clear. Now, according to our definition, we have to take the force in the direction of displacement. हमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो. देन ओनली वी कैन से दैट वर्क इज डन. वही क्या होगी, वर्क की डेफिनेशन होगी. तो हमें फोर्स की वो डायरेक्शन चाहिए जो किस में हो, डिस्प्लेसमेंट में हो. अब यहाँ पे तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सपोज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन, दीज आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. दोनों के बीच में कुछ एंगल है. इन दैट केस आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे वी विल डिस्कस अ स्मॉल कंसेप्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, दो टाइप के प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं. मैं ज्यादा डिटेल में इस बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक. सो आई विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट. कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दिस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन योर चैप्टर वेक्टर. एंड सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट. You should aware about these two types of products. Suppose you have two vector quantities. This is vector A and this is vector B. When we have to take the product of two vector quantities in the same direction, please understand my words, in the same direction, we want to take the product of these two vector quantities and we want to see the effect of the product of these two quantities in the same direction. कि अगर ये दोनों quantities हम ले लें जो कि vector quantity है और इनका product कर दे, और उस product का effect हम कौन सी direction में देखना चाहते हैं, same direction में. In that case the product is known as dot product. और यहाँ पे हम एक dot लगा देते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वांटिटीज अब किस में है, सेम डायरेक्शन के अंदर है. ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम. बट व्हेन सपोज वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज A and B and the direction of A and B are not same, इनकी जो डायरेक्शंस हैं they are not same, they are perpendicular to each other. क्या है, एक दूसरे के क्या है, perpendicular है. Directions are not in the same directions, they are not in the same directions, but the direction is perpendicular to each other. In that case the product of such two vector quantities is known as cross product, and we will put a cross sign between the two. ठीक है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा? जब दो क्वांटिटीज जिनका हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं विच आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. एंड डॉट प्रोडक्ट, सपोज वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज, वी वांट टू फाइंड आउट देयर डॉट प्रोडक्ट. इन दैट केस दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो अगर इफ यू आर applying a dot over here, that means these two quantities are in the same direction. इनका इफेक्ट जो है, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा? उनका सेम डायरेक्शन के अंदर इफेक्ट होगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट इन द सेम डायरेक्शन, उनका जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा उसका इफेक्ट क्या होगा? सेम डायरेक्शन के अंदर होगा. यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डॉट मिलेगा. अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, इनकी डायरेक्शंस के बीच में देयर इज सम एंगल. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? यहाँ से चाहो तो आप फोर्स को रिजोल्व कर लो, चाहो तो आप डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व कर लो. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फोर्स को ही हमेशा रिजोल्व करो. मैं आपको दिखाऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट को भी आप कैसे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हो. तो बेटा, in order to see the effect of this force in the direction of displacement, we want the force in the direction of displacement. ये तो पॉसिबल यहाँ तो है नहीं. आप देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? we will resolve the force into two components. ठीक है, आप सबको पता है वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? into two components. फोर्स को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं. तो एक कंपोनेंट हो गया फोर्स का. सपोज ये आपके पास हो गया फोर्स का कंपोनेंट. आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस. तो सपोज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई एक्सिस. ठीक है, और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एफ एक्स. अब देखो, ये जो फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ एक्स, हमें क्या चाहिए था? हम फोर्स का इफेक्ट देखना चाहते थे किस डायरेक्शन में? जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो. तो फोर्स, ये एफ तो एस की डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में नहीं है, बट फोर्स का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वो किसके डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है. तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ टेकिंग एफ, वी विल टेक एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? तो हमने क्या किया? फोर्स को ही, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये दो कंपोनेंट एफ वाई एंड एफ एक्स, इन दोनों का जो इफेक्ट होगा दैट इज इक्वल टू द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ एफ. मतलब हमने क्या किया? इस एफ के इफेक्ट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. इन दोनों कंपोनेंट्स का टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू एफ. मतलब ये समझो कि किसी एक पर्सन है, उसकी पावर को आप क्या कर दो? दो पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, तो दो वो पर्सन्स की जब पावर को इकट्ठा करोगे तो देयर इंडिविजुअल पावर का जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू द सेम पर्सन. तो वही होगा यहाँ पे भी. एफ वाई प्लस एफ एक्स का जो इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो हमने यहाँ पे, मुझे समझाना बस यही था कि हमने एफ को, फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया. one component of F, that means force, is along the displacement and another component of force is perpendicular to the displacement. देखो, अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की क्या हो? डायरेक्शन में हो. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो कौन सा है? एफ एक्स. क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे? ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ. दिस इज फोर्स, this was displacement, and the angle between the two is theta. We have resolved force along y-axis, this is Fy, and we have resolved force along x-axis also. So here two components of force are Fx. ठीक है, एक कंपोनेंट कौन सा है? Fx, जो कि किस डायरेक्शन में है? विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट.
Okay, we have another component of force, that is Fy, and which is not in the direction of displacement but which is perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो किस डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो. ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक मिनट होल्ड करना, किसी बच्चे की कॉल है. हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग पवन, आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया? अच्छा, ठीक है. मैंने तो सबको ही ऑटो लाइव क्लास रोक रखी है, ऑटो कनेक्टेड है, अपने आप कनेक्ट हो जाओगे. एडमिट नहीं हो रहा क्या? एक मिनट बेटा, आप एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करो. आ गया है पवन. ओके, हो गया कनेक्ट? पवन से पूछो. ओके, ओके. सो force work done is equal to force into displacement. Work done is represented by F. We will take that component of force which is in the direction of displacement, that is Fx. ठीक है, and this is displacement S. अब क्या है? Fx का मैग्नीट्यूड, ये जो Fx है मैं आपको बता दूं, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा F cos थीटा, और ये जो Fy है इसका मैग्नीट्यूड इज F sin थीटा. जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको हम कोस कंपोनेंट भी बोलते हैं, एंड जो वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका कंपोनेंट है, चाहे वो आपका फोर्स का ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट का ले लो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लो, अगर उसका आप वाई एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट ले रहे हो तो उसको आप साइन कंपोनेंट भी बोलते हो. तो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इट्स मैग्नीट्यूड इज एफ साइन थीटा. तो देखो बेटा, हम यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे. सपोज आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसका मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिख सकते हो? सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, और सिंपली आप कैसे लिख सकते हो? ए भी लिख सकते हो. ऐसे ही सपोज आपके पास दूसरी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन एज लाइक बी और सिंपली बी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा क्या लिखेंगे? एफ का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज एफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एफ कोस थीटा. ठीक है, और s, तो ये हो गया आपके पास s, एंड इट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन f s cos theta. So this is the magnitude of work done when the angle between the force and displacement is theta. ठीक है, जब दोनों के बीच में when the force and displacement are not in the same direction, there is some angle theta between the two. In that case हमने क्या किया? फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस. तो इसको हमने लिखा एफ अलोंग एक्स, तो एफ एक्स, दिस इज एफ वाई. एफ एक्स के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, दिस इज एफ कोस थीटा. वाई के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज एफ साइन थीटा. अब हम अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी हैव टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमने लिखा एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स और एस दोनों ही डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है. तो ये हो गया आपके पास एफ कोस थीटा, ये हो गया एस. इसको रीअरेंज कर लो, एंड बाय रीअरेंजिंग वी कैन राइट एफ एस कोस थीटा. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंड वी आर टेकिंग इट्स कोस कंपोनेंट. तो ये हो गया एफ एस कोस थीटा. अब स्टूडेंट्स एक चीज ये क्लियर है आई थिंक. अब आई वांट टू टेल यू कि वी हैव टू टेक ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ displacement. There is, we do not require that component of force which is here. We don't need, here there is no work of the need या फिर work of that component of force which is in the, which is perpendicular to the direction of displacement. I hope I'm clear at my point.
हमें उस कंपोनेंट फोर्स के उस कंपोनेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है विच इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर। तो इसको आप वैसे भी रीअरेंज करके इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, अगर आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ का कंपोनेंट एफ कोस थीटा और ये आपके पास सिंपली एस, या फिर सीधा ये भी बोल सकते हो, सीधा ही एफ एस को आप कैसे लिख सकते हो, एफ का मैग्नीट्यूड इज सिंपली एफ, एस का मैग्नीट्यूड इज सिंपली एस और डॉट प्रोडक्ट मींस कोस थीटा। क्योंकि जब आप दो क्वांटिटीज ले रहे हो जिनका विच आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस वहां पे आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर सीधा बताऊं तो आपको कोस थीटा से, और अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो सीधा आप क्या लिखोगे, एफ एस और वहां पे क्या लग जाएगा, साइन थीटा। ये बात की बातें हैं। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये देखो, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ए और बी, और अगर हम यहाँ पे उनको क्या कर दें कि सपोज हम लोग वेक्टर्स हमें गिवन हो, समटाइम्स क्या होता है कि वेक्टर्स आर गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, in the form of unit vectors actually, I, J and K, और ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। जैसे अभी आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ, सपोज आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है A, we can write it as AX I plus AY J plus AZ K। ये हम क्या लिख रहे हैं, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको पता है आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड दिस इज यूनिवर्सल रूल, जो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिट वेक्टर आई, जो आपका वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जे यूनिट वेक्टर, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज रिटन एज ए एक्स, और ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर आई। ऐसे ही ए वाई, ये y वाला कंपोनेंट है, y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा z, और ऐसे ही z, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर क्वांटिटीज को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लिया x, y और z के अलोंग, ठीक है। तो z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होगा आपका k। इसी तरीके से सपोज दूसरी क्वांटिटी वी हैव b, इसको भी कैसे लिखेंगे, b अलोंग x एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज i, देन by and unit vector along y-axis is j. Next is bz and unit vector along z-axis is k. Now simply you have to, work done is also given as product of two vector quantities like force and displacement, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हम कैसे सोल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पे a डॉट b कैसे सोल्व करोगे, ये आपके पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स आई को इसके साथ और इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, यही आएगा। ऐसे ही ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस इसका इसके साथ करोगे तो ए एक्स बी जेड और ये आ जाएगा आई डॉट के, क्लियर। प्लस ऐसे ही ए वाई का करो तीनों के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास ए वाई जे, सॉरी ए वाई बी एक्स
और ये आ जाएगा जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड बी जेड जे डॉट के। अभी इसका भी बाकी है, तो प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस, अभी आप ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, डरो मत इस इक्वेशन से, ए जेड बी जेड और के डॉट के। अब स्टूडेंट्स थोड़े से समझना, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखो आई डॉट आई है, यहाँ पे आई डॉट जे है, यहाँ पे आई डॉट के है, अगेन यहाँ पे जे है। अब देखो जो ये इनके बारे में बात करते हैं, ये वाला और ये, ठीक है। आपको पता है दिस इज आई यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई। अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ठीक है। और कैसे सोल्व करते हैं ये हम इसको लिखेंगे आई आई कोस 0, क्योंकि दोनों ही किसके अलोंग है, आई और आई, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे थीटा कितना बन जाएगा, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1 इंटू कोस 0 भी कितना, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपके पास इस इक्वेशन में से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ए एक्स बी एक्स, क्लियर। और इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब आओ इसके ऊपर आई यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे। अब आपको पता है ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया 1। बट एक चीज देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यूनिट वेक्टर आई है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और यूनिट वेक्टर जो जे है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या लेना था, कोस 90 भी लेना था, और कोस 90 कितना, 0। तो जहां पे भी आपको आई क्रॉस जे मिले, मतलब ये, या फिर आई क्रॉस आई, सॉरी क्रॉस नहीं, आई डॉट जे मिले, या फिर आई डॉट के मिले, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला, या फिर जे डॉट आई मिले, समझ गए होंगे ना मेरी बात, उन सब की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमें जो 1 वैल्यू मिलेगी वो कहां से मिलेगी, आई डॉट आई, जे डॉट जे से भी हमें क्या मिलेगा, 1, और के डॉट के से भी हमें क्या मिलेगा, 1। बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, सिर्फ इसका 0 नहीं आएगा, इसका 0 नहीं आएगा और इसका 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी लास्ट में, ए एक्स बी एक्स सीधा ही ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये सारा आपको समझाने के लिए था। आप सीधा ही याद रखो कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे ए और बी हैं, तो सीधा आप क्या करो, ए का एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस ए का वाई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी का वाई कॉम्पोनेंट प्लस ए का जेड कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी का जेड कॉम्पोनेंट, ये आपके पास होगा। अब इसको समझते हैं किसकी टर्म में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। आई होप ये क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एफ है दूसरी, फर्स्ट इज फोर्स एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इनका हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर लेने हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हो, तो हम कैसे करेंगे, देखो सपोज इन दोनों का फोर्स आपको गिवन है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लूं, न्यूमेरिकल आपको गिवन है, पहले इसको एफ एक्स की टर्म में समझ ले, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सीधा ही आप एक्स लिख सकते हो, ठीक है, एक्स सॉरी आई, दिस इज वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे
आई के अलोंग आपको रिजल्ट मिलेगा, जे के अलोंग मिलेगा और के के अलोंग मिलेगा। बाकी सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आई का जे के साथ करोगे, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो दैट विल गिव यू जीरो आंसर। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हम यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड। ठीक है, ये आपके पास होगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल के टर्म में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको जो फोर्स कंपोनेंट है वो आपको गिवन है आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन एज 4i प्लस j प्लस 7k। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एफ एक्स देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब एफ एक्स अगर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1। एफ वाई देखा था, तो एफ वाई की जगह यहाँ पे क्या है, 2। एफ जेड था, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1। ऐसे ही एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4। ऐसे ही वाई अगर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है 1, और जेड है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 7। तो अगर आपको ये फोर्स गिवन हो और ये अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो उस केस में आप एफ डॉट एस कैसे निकालोगे, तो ये आप सिंपली क्या करोगे, 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यही तो करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 4, और आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ये है -1 इंटू 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 माइनस 7। तो आंसर इज -1, बट क्या आएगी यूनिट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन। तो ये आपके पास आ गया किसमें, जूल्स में। मैं अभी आपको, मैंने यूनिट जूल लगा दी है, अभी आपको बताया नहीं है यूनिट्स कैसे निकालेंगे वर्क की, तो वो भी डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्लियर है। आगे चले, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। अब आपने अच्छे से समझ लिया है कि जो वर्क डन है दैट इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सबको अच्छे से क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस कि वर्क की डायमेंशंस क्या होंगी। आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है ना, डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर कई बार एक नंबर में रिलेशन पूछ लिया जाता है। अब जो फोर्स है उसको आपको पता है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किस में लिखते हैं, मीटर्स में। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये तो हो गई क्या, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अब 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, तो डिफाइन 1 जूल कैसे डिफाइन करोगे, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, मतलब ये जो वर्क है इसको हम 1 जूल कब बोल सकते हैं, तब बोल सकते हैं जब फोर्स लगे उसका मैग्नीट्यूड इज 1 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी कितनी हो, 1 मीटर। तभी तो 1 मीटर और 1 न्यूटन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या मिलेगा, 1, और ये बन जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, जूल। तो 1 जूल कब बोल सकते हो, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी कितनी हो, 1 मीटर हो। उसी केस में आप क्या बोल सकते हो कि वर्क डन कितना है, 1 जूल। तो कैसे डिफाइन करोगे, वर्क इज सेड टू बी, वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन है, वन वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट इज said to be 1 joule when force applied is of 1 newton and displacement in the object and displacement in the object is also displacement in the object is also
ऑल्सो ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्या, 1 जूल का डेफिनेशन। तो जो एसआई यूनिट है वर्क डन की वो क्या होगी, जूल। लेकिन सीजीएस में भी आपके पास यूनिट होती है। ठीक है, तो सीजीएस के अंदर, सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें जो वर्क डन की यूनिट है दैट इज अर्क, ERG। ठीक है, और ये अर्क क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 अर्क को ही डिफाइन करेंगे हम। 1 अर्क कैसे मिलेगा हमें, जैसे हमें 1 जूल मिला था, कैसे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 अर्क कैसे मिलेगा, 1 अर्क मिलेगा हमें। अब जो फोर्स है उसकी यूनिट भी किस में लेनी पड़ेगी, एसआई में नहीं, किस में, सीजीएस में। तो सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है आपके पास डाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय, अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी यूनिट हम, ये तो ऐसा यूनिट हमने लिखी थी मीटर्स, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास, जो अर्ग है वो कैसे यूनिट है, सीजीएस के अंदर यूनिट है किसकी, वर्क की। तो अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। अब जो वर्क डन है उसको 1 अर्ग का बोल सकते हैं व्हेन 1 डाइन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, in that case work is said to be 1 earth। I hope it clear है ये इतना। अब हम क्या करेंगे, जो ये कई बार लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था फाइनल एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। कैसे बता सकते हो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ, सीधा सिंपली मैं लिख सकती हूँ, कई लोगों का तो आंसर भी आ गया है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। मतलब जो 1 जूल है वो कितने अर्थ के इक्वल होता है, 10 टू द पावर 7 अर्थ। बट इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। देखो कैसे समझेंगे, पहले लिखते हैं 1 जूल। 1 जूल को आप कैसे लिखते हो बेटा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब अगर इस 1 न्यूटन को, अगर मैं न्यूटन को चेंज कर लूँ किसमें, डाइन में, तो आपका जो 1 न्यूटन होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो इस 1 न्यूटन को लिख दो कितना, 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, और आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, तो सिंपली यहाँ से क्या लिख दो, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन, और इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। पावर्स को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सॉरी डाइन सेंटीमीटर, सॉरी इट्स डाइन सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास, और डाइन सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, डाइन सेंटीमीटर क्या था, डाइन सेंटीमीटर को ही हमने लिखा था क्या, अर्थ। तो ये हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है बेटा, आपको कुछ भी रटना नहीं है फिजिक्स के अंदर, लेकिन अगर आप रैमिंग करोगे फिजिक्स के अंदर तो वहीं पे फिजिक्स आपका साथ छोड़ देगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, सो दैट माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आपको पता है जो वर्क डन है दैट इज गिवन एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है मैंने कल भी बताया था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वर्क, जो कि एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क क्या हो सकता है आपके पास, वर्क डन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, work done can be negative and work done can be zero। ठीक है, जीरो वर्क डन। अब हम यही पढ़ेंगे कि वर्क डन के टाइप्स, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव एंड वर्क डन कैन बी जीरो। अब बेटा इसको थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेते हैं, बाकी कल की क्लास में हम इसको अच्छे से करेंगे। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, कब होगा वर्क डन पॉजिटिव, व्हेन थीटा,
थीटा इज द, अब सबको पता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेस देयर इज सम एंगल, सपोज दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एस, दिस इज एफ, एंड the angle between the two directions, direction of force and displacement, is theta, and when this theta is acute angle, that means less than 90 degree, in that case जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज एफ डॉट एस, यही लिखते हैं हम, और इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और जब आपके पास ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इन दैट केस जो आपका कोस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोस इज पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर लेस देन 90 डिग्री। तो इस केस में आपका कोस जो होगा, कोस थीटा इज पॉजिटिव, और अगर कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, वैसे मैंने कल भी बताया था कि सपोज आपके पास ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर था, इस रोलर के ऊपर यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द रोलर एंड द रोलर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस केस में जो आपका वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज जैसे आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, सपोज ये आपके पास एक बॉल है, अब यहाँ पे दोनों ही क्या है, अब अगर हम थीटा की बात नहीं करें, थीटा के वे में ये हमने थीटा समझ लिया कि थीटा से कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोस की वैल्यू बिलो जो थीटा होता है 90 डिग्री से जब कम होता है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इन दैट केस वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जो आप डेली यूज में आप देख के भी समझ सकते हो कि यहाँ पे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। वो कैसे बोल सकते हो कि सपोज ये बॉल है, दिस इज इट्स मोशन इज टुवर्ड्स द अर्थ, दैट मींस ये डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में भी आप क्या बोल सकते हो कि वर्क डन आपका क्या है, पॉजिटिव। दूसरा वर्क डन नेगेटिव कब होगा, बस ये समझो कि व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे आप थीटा को बोल सकते हो एक्यूट है, यहाँ पे आप थीटा को बोल सकते हो क्या है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है। इतना इसको ब्रॉड वे में कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थीटा सॉरी वर्क डन जीरो कब होगा, जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मींस जो एंगल है वो कितना हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों किस डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास ये समझो कि एक कुली है, लेट अस मेक द डायग्राम ऑफ कुली, ये कुली है, इसने अपने सर के ऊपर ये बॉक्स उठाया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये कुली इस फोर्स को, इस बॉक्स को लेके, हैवी बॉक्स को अपने सर पे लेके ओवर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम कल स्टडी करेंगे। तो अब यहीं पे आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस the types of work done and we will discuss about the work done by the variable force.